लेख के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये फिर से अगेन आपने ये लाया शॉर्ट फिल्म, इसके बारे में कुछ व्यूअर्स को बताएं। तो ये शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई नहीं है। जी जी हाँ, मेरे प्रभु हाँ, मेरे दोस्तों ने बनाई है। प्रमोद और एंड एंड शांति एंड जो डायरेक्टर हैं, एक मेन का नाम पूछना। नहीं, शांति नहीं, एंड शांति दी एक्टर इज निशांति। सो सो फियरलेस इज मेड बाय निशांति एंड प्रमोद। मैंने फिल्म देखी, मुझे बहुत पसंद आई। तो 13 मिनट्स की शॉर्ट फिल्म है, थ्रिलर है। तो मैं सपोर्ट करने प्रमोद को और निशांति को आज इसके बाद अभी मसान भी आपकी मसान आ है, रही जी। मसान आ रही है, अभी आपने बताया बेजुबान भी आ रही है, मसान की बात मसान एंड जुबान। बेजुबान जुबान। जुबान ओके हाँ। ओके। और मसान के बारे में कुछ आप तो मसान फिल्म है जो नीरज केवान ने डायरेक्ट की है। एंड उसको कैन में 2 अवार्ड मिले, काफ़ी चर्चित थी है, बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया। जब हमने 1 महीना पहले उसका कैन में प्रीमियर किया था, तो वेरी एक्साइटेड कि इंडिया में 24 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। और फिर वो तो 2 हफ्ते में ही पता चलेगा कि कैसे हुई। किस टाइप की शॉर्ट थ्रिलर है। फिल्म? थ्रिलर है, बहुत टेंशन है 13 मिनट में। एंड निशांति ने बहुत अच्छा काम किया इसको डायरेक्ट करके। थैंक यू। और आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। थैंक यू। ये ऐसे ही आपके दिमाग में आया कैसे कि मतलब ये किया जाए? Can I talk in English? हाँ फिर fearless is also Yeah. So basically, this is some incident that happened to me, and like like all writers, I took inspiration. All my writing usually I do it from my own personal experience. Basically, like you get inspired from life. So when I was in college, something like this happened, and like I got caught in riots, and some like these cobblers. He helped me out, and I was like, once inside, there's something happening outside. I was fearing for my life, but then I thought this guy is going to do something. And then I realized that like I pretend to be this very broad-minded, very sensitive person outside, but then when it comes to like these like small fears, I'm just a regular person there, and I wasn't really proud of it. And it kept coming back to me, and over the years, finally, like I decided I have to make a movie about it. And what's the facing making the thing problems, this kind of problems? uh, actually, frankly, it went on very smoothly. Uh, Actually, what happens in short films is you don't have the right kind of production. Like you always put in your own money and things like that. But that way, Pramod was very helpful. We got what we wanted on time. In fact, वो जो अंदर का scene है, we actually reconstructed the whole thing. We actually bought 4 different walls and we went into his studio. We did it indoors. And so we did it in like how a proper film will be done, which has a little bit of cost involved in it. But because Pramod was supportive, we were able to get that and do it. Because इतना like कम जगह में like कैमरा रखना बहुत मुश्किल होता है. So इसलिए like we had to like wherever the camera was there, we wanted to remove the, so all those things, and not just shooting in Powai slums. Those people are amazing. I mean, we left a helmet, we left a camera, we left like a phone. Everything came back to us, and they are, I mean, like people of Mumbai are amazing. Like. What's the experience in this making movie fearless? Fearless, it's a great team. I mean, I'm really thankful to promote to, I worked at each level. Rajesh did a brilliant cinematography, as you have seen, but like, the inputs that each member of my team gave me, it just enhanced the film. And, it's a learning experience for all of us. Everyone is like trying to do something new, so it's just great to work with a good team, which is very supportive. So that's Fearless for us. Next, any short film that you get? I'm also a screenwriter.
So I'm actually planning to write and hopefully like feature films sometime. हेल्प करता है किसकी भी मेरे मन में सामने वाले अभी की ये जो रेप और सब कुछ हो रहा है ना, तो और डर पैदा हो गया है. थोड़ा सा पर कुछ ठीक है और आपने इसके लिए बहुत ढेर सारी बनाई आप थैंक यू. बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. जब निशांती ने ये स्टोरी बताया इट वाज, सबसे पहले तो मैं प्रमोद हूँ. और तो ये हुआ कि निशांती और मैंने सोचा था कुछ ना कुछ तो करना है, और बहुत वक्त से हम कई कहानियों पर काम कर रहे थे. एंड देन ये कहानी हमने फ़ोन पे डिसाइड की. और जैसे ही उन्होंने बताया मैंने बोला यार ये वाकया बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड ये लोगों को सीधे छुएगा दिल पर, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. और इसी तरह का रिएक्शन मिल रहा है. इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये फिल्म देखकर. एकदम सच हुआ. तो ये आइडिया कैसे है शांति का ये आइडिया आपको शुरू से ही मतलब लगा कि हाँ ये आज एक्चुअली उन्होंने ये बताया कि उनके साथ चेन्नई में ऐसा हुआ था. मतलब ओरिजिनल बेस ये है. हाँ जी. तो वो उनके साथ लाइफ में एक एक्सपीरियंस हुआ था, तो हमने बोला चलो इस पर फिल्म बनाते हैं. बिकॉज क्या हो रहा है कि हम जब भी कहीं पर भी जाते हैं आजकल, छोटे बच्चे हों, हम हों, बड़े लोग हों, औरतें हों, सबको ये बताया जाता है कि सामने वाले पे ट्रस्ट कैसे ना करें. मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को आज बहुत डाउटफुल नज़रों से देखता है कि यार हर जगह जाते हुए चेकिंग होने लग जाती है. ऑल दैट हैपन. तो एक नज़रिया बदलने की बात है. मेरे साथ एक थिएटर में हुआ था ये फिल्म के शूटिंग के 3 दिन पहले, कि मैं सिनेमैक्स में बैठा था, या कोई पर्टिकुलर थिएटर में बैठा था, ध्यान भी नहीं है. और मेरे बगल में कोई चीप रम पिया हुआ एकदम ऐसे झोपड़पट्टी का ऐसे लग रहा था कि कोई लड़का बैठा है. और हमारे प्ले की कुछ 3-4 फीमेल एक्टर्स भी थे. तो मैं प्रोटेक्टिव हो गया और मैं बगल में बैठ गया. लेकिन जब मैं शूट कर रहा था ये फिल्म, मैंने बोला यार शायद उसके घर में कोई डेथ हुई होगी, शायद वो एग्ज़ाम में फेल हुआ होगा, शायद उसको बहुत बड़ा बोनस मिला होगा, सेलिब्रेट कर रहा होगा, कुछ भी होगा. वो पिया हुआ था, जो दिल टूटा हुआ, वो पिया हुआ था. ही डिड नॉट मीन इट. इसको करने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है जिसका मेरे ज्ञान में. नहीं ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है. बहुत फ्रेंडली लोग थे, बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ. तो अभी आप इन दर्शकों को बस क्या ये मैसेज देना चाहते हैं कि नॉर्मल पर्सन को कहीं भी विश्वास किया जा सकता है. मैं तो यही कहूँगा कि इंसान हो या जानवर, एक दूसरे पर अब हम भरोसा कर कर अब एक दूसरे के साथ दिल लगा कर हम जिएँ तो बहुत अच्छी बात है. क्योंकि झगड़े तो हर जगह हो रहे हैं. हम एवरी डे तबाही तो देख ही रहे हैं. तो जितनी ज़िंदगी है उतने में एक दूसरे के साथ खुश रहें. और क्या. इसके अलावा अगर आपकी बात करें तो और कहाँ जहाँ देखने को मिलेगा एक दूसरे. तो आई एम डायरेक्टिंग द नेक्स्ट फिल्म. उसका नाम हिजरा है, जो 6 औरतों की कहानी है, 6 लड़कियों की कहानी है. वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो मैं आपको चाहूँगा कि आप देखें. और उसके अलावा मेहनत चल रही है, जहाँ मौका मिला वहाँ पे आप देखोगे स्क्रीन पर भी. थैंक यू सो मच.